Clear? So in this chapter, good morning once again, all of you. So in this chapter, basically this chapter is divided into two parts. Clear? So the first part is sometimes I find rupee in garbage, and the second part of this chapter is I want to drive a car. Clear? Now, in the first part of this chapter contains a story related to a rag picker, a boy who is basically a rag picker. Clear? Now, what this first part actually contains, I'm just going to read a few lines from your textbook because the starting few lines are having a very good relevance of this chapter. Okay, one thing I am missing here about the author, Anish Jung. So you have already told me and you have already shown in your PPT sufficient and relevant information about the author. So the author Anish Jung is basically from the Muslim family, and she has spent and she has born in Raulkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Clear? So basically, she's a very renowned writer, columnist, and her articles are very frequently been published in renowned newspapers, distinguished newspapers. Yeah. So he had been working in the field of social work also for a very longer period of time. बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने सोशल वर्क में भी बहुत अच्छा काम किया है. शीज अगर आप इनके और इन डेप्थ इनकी स्टोरी को इनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इनका एनजीओज के साथ बहुत एसोसिएशन रहा है. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जिसमें इन्होंने एनजीओज के साथ जुड़ के इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करने की कोशिश की है. सोसाइटी में अपना सपोर्ट, अपना रोल इन्होंने काफ़ी देने की कोशिश की है. क्लियर? And no doubt she is having a good ability to write good things and attract the readers attraction. Okay, so now come to the chapter. In the very first line, sometime I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. What is mean by scrounging? आप अपने आप को unmute कीजिए and tell me the meaning of scrounging. What is mean by scrounging? Anybody? So looking for, खोजना कुछ भी मतलब. ठीक है. Scrounging means looking for to get something, especially money or food. ठीक है. By asking for them instead of buying them. किसी चीज को मांगना, या आप कह सकते हैं कि उस चीज के लिए कहना या पूछना, बजाय इसके कि आप उसको खरीद रहे हैं. ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है बट आप उसको उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसको लेने की आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए स्काउंजिंग का एक वर्ड यूज होता है. ओके, देयर इज अ वेरी important contest which has been reflecting in this 2 or 3 lines. Scrounging for gold in the garbage. इसमें यहाँ पे गोल्ड का क्या मतलब है? कचरों के ढेर में वो क्या सोने चांदी ढूंढते थे? What is mean the gold here? आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. All of you just unmute yourself. Please unmute yourself. Tell me what is mean by gold. What kind of reflection this word is having here? Gold क्या शो कर रहा है? बताइए प्लीज. बताइए श्रेया, समृद्धि. What is mean by gold here? Hello, I'm audible.
हेलो, Yes, sir. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आवाज तब तक जा रही है क्लियर? So, गोल्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या निकल रहा है गोल्ड का मतलब? स्काउंजिंग ऑफ गोल्ड, क्या So ढूंढते थे any वो उसमें? valuable thing. व्हाट एनी वैल्यूएबल थिंग? so coin or उस कचड़े के ढेर में उन्हें गोल्ड मिलता था या कुछ भी मिलता था तो वो उनके लिए गोल्ड होता था. बेसिकली इट इज अ so हाइपरबोल. ओके, दिस इज अ हाइपरबोल, यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोल. ठीक है, यहाँ पे किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं जब आप. क्लियर? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को सब लोग. ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ. yes, sir. ऑल ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ. श्रेया, दिव्यांशी. ओके, स्टार्ट. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड का सिंपल मीनिंग यही है कि वो उस कचड़े के ढेर में कुछ जो भी ढूंढते थे वो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती थी. वो उनके लिए वैल्यूएबल इसलिए होता था क्योंकि वो उसको बाद में या तो कहीं बेच देते थे या उससे उनको किसी को देने के बाद उनको जो पैसे मिलते थे वो उनसे अपना लाइवलीहुड जो है वो लीड करते थे. ठीक है, क्लियर? तो इसलिए वो कचड़े का ढेर और उसमें मिलने वाली जो भी चीजें थी जो उनको काम की लगती थी वो उनके लिए एज अ गोल्ड काम करती थी. ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू होती थी मार्केट में उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, भले ही वो एक सिक्का हो, भले ही वो कोई एक छोटा सा कोई मेटेलिक कॉइन हो, कुछ भी हो, वो उनके लिए गोल्ड था. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हाइपरबोल कहा गया है. कचड़े में कोई कचड़े के ढेर में हमें गोल्ड नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज उसमें मिल ही जाए आपको, है ना? ठीक है, बट only for the rag pickers, only for the poor children who are just doing these kind of work in order to survive their livelihood, the things which they have found in the piles of the garbage, they are just like a gold for them. वो उनके लिए एक गोल्ड की तरह होता था कि वो उसका यूज करके उसको कहीं पे सेल करके अपना लाइवलीहुड वो लीड करते थे. क्लियर? Am I clear to all? ठीक है, okay. Now the next thing is when we are moving in this story, author asks Sahib that why you don't do anything else. author साहब से पूछती है, साहिब से पूछती है कि आप कोई और काम क्यों नहीं करते, आपको सिर्फ ये रैक पिकिंग का काम ही क्यों अच्छा लगता है. तो साहिब का जो जवाब होता है वो क्या होता है? साहिब रिप्लाइड दैट आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. साहिब कहता है कि उसके पास और कुछ करने को है ही नहीं, तो वो करेगा क्या. ठीक है, नाउ शी आस्क्ड दैट if suppose I am just making a school, so are you able to or do you like to come to school. तो वो उससे पूछते कि क्या आप स्कूल आना पसंद करेंगे अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा. बट अगेन आफ्टर फ्यू डेज when they meet again, साहेब आस्क आपने स्कूल बना लिया. तो उसके इस स्टेटमेंट से जो ऑथर हैं उनको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है. शी फील रियली वेरी हेल्पलेस, वेरी वेरी feel very guilty that why she had been promising these kind of promises which she can't able to fulfill it. ऐसा कहते हैं कि वो जिस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते उस प्रॉमिस को उन्होंने उससे किया क्यों. क्लियर? तो ये फिर इसमें आगे की स्टोरी में ऐसा कुछ होता है. नाउ there is another situation came when author just thought that the name of this little boy is Sahib Alam.
and she thought that if if this particular boy is actually knowing the meaning of his name, then he can't believe, and he come to know that he is not doing that kind of work which matches with the name of his name, जो उनके उसके नाम से मैच नहीं करता। वो सोच रही थी कि अगर उसको अपने इस नाम का मतलब पता चलेगा तो उसको पता चलेगा कि वो जो काम कर रहा है वो उसके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अब उसके नाम का एक्चुअल मीनिंग क्या था, कल हमने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कल की साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब का मतलब लॉर्ड और आलम का मतलब होता है, दिस इज अगेन उर्दू, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द उर्दू स्क्रिप्चर, सो इट मीन्स आलम मीन्स यूनिवर्स, ओके, एंड साहिब मीन्स लॉर्ड, जिसे कहते हैं कि वो इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ पावर, ठीक है, हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अथॉरिटी। So again, she feels very bad while seeing this situation that this boy is having that kind of name Sahib Alam, but he is doing this kind of silly work. वो रैक पिकिंग का काम कर रहा है, इतना बड़ा नाम है और काम इस तरीके का कर रहा है, ठीक है। So this is a scene. Now, once we are moving in this chapter, there is another situation we encounter with, that there is a tradition of being remain barefooted. यहाँ पे इनके बीच में ये जिस कम्युनिटी में बच्चे रहते थे, जिस लोकेलिटी में रहते थे, इनके यहाँ नंगे पांव रहने का ट्रेडिशन था। अगर उनके पास चप्पल्स अवेलेबल भी हैं तो भी वो उसको यूज नहीं करते थे, या किसी के पास पेयर्स ऑफ चप्पल्स जो है वो नहीं होते थे, एक पाँव में कोई और चप्पल होता था, दूसरे पाँव में कोई और चप्पल होता था। ये सारी सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा आपको, आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आपको अक्सर ये चीज़ें आपके लोकेलिटी में भी देखने को मिल जाती होंगी। क्लियर? सो ये यहाँ पे बेसिकली इनके यहाँ जो ट्रेडिशन बन गया था कि आपको बेयर फुटेड ही रहना है, ठीक है। उनके पास अगर चप्पल होता था तो भी वो नहीं पहनते थे। नाउ Sahabis from Dhaka, their living places were demolished by the heavy storm and they shifted to Delhi सीमापुरी, ठीक है। बेसिकली साहब जो था वो ढाका का रहने वाला था, ढाका का, और वो जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तूफान आया था, स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से वो जहाँ रहते थे वो बस्तियाँ उनकी पूरी उजड़ गई थी। अच्छा, आपने इन लोग ऐसी बस्तियाँ देखी होंगी जो अक्सर स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म्स, रेलवे ट्रैक्स के आसपास आपको वो बस्तियां नजर आ जाती होंगी जिसमें इस तरह के लोग रहते हैं। प्लास्टिक्स के घर इनके बने होते हैं और कच्चे टाइप के घर बने होते हैं। तो इसमें कौन रहता है? बेसिकली इसमें इसी तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे बहुत अगर ज्यादा तेज आंधी या तूफान आए तो वो उनका घर डिमोलिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, दे गेट डिस्ट्रॉय बाय द हैवी स्टॉर्म because the foundation of that kind of houses are not very strong, that's why it is a very temporary in nature, ठीक है। तो ये इनके साथ इशू होता था। तो ये ढाका में था, वहां फिर इनके साथ प्रॉब्लम हुई जब इनका सब कुछ उजड़ गया, तो फिर अब इनको जीने खाने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो ये फिर दिल्ली को माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसमें माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी जब मैं आपको अभी कुछ वेबसाइट्स अभी अपनी स्क्रीन पे शेयर करके दिखाऊंगा तो आपको वहां मैं बताऊंगा कि ये इस तरह के इशू क्यों आते हैं, कहाँ से ये इस तरह के बच्चे आते हैं, और ये इनके साथ ऐसे इश्यूज क्यों आते हैं। तो इसमें एक माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अब ये दिल्ली माइग्रेट करके आ गए, इनको लगा कि दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे इनको कुछ रहने खाने का और जिंदा रहने का कोई जरिया मिल जाएगा। तो ये फिर दिल्ली सीमापुरी में आके वहां पे इन्होंने अपना फिर से जो है वो कुछ काम इस तरीके का शुरू किया। क्लियर? नाउ अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करना चाहता था। आप सबने अपना अपने आप को अनम्यूट किया है? मुझे जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए आप सब अपने आप को। एक एक सीरियल आता था पहले, अगर आपको याद होगा, अगर किसी ने देखा होगा तो,
वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरियल होता था। वैसे बहुत सारे सीरियल्स थे, अब तो सब बंद हो गए, हम लोग उसको देखते थे इन आवर चाइल्डहुड। शकला का बूम बूम एक सीरियल आता था, इसको नाम याद है, पता है इसके यस बारे यस यस सर। में क्या होता था उसमें? शकला का बूम बूम क्या होता था उसमें? तो उसके पास एक पेंसिल थी जिससे वो जो बनाता था वो रियल हो जाता रियल था। हो जाता। और और कुछ? ओके, एक और सीरियल आता था, जूनियर जी, किसी ने नाम सुना? शक्तिमान तो सबने सुना होगा, एक और सीरियल आता था जूनियर जी। नहीं? चलिए ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपसे अभी वो गोल्ड के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया कि वो गोल्ड जो है वो उनके लिए जो गार्बेज है बेसिकली उनके लिए गोल्ड होता था, उसमें उनको लगता था कि जो चीज मिलेगी वो गोल्ड से कम नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन है कुछ ऐसी कि अगर आपके पास कोई जादुई चीज आ जाए तो आप उससे अपनी विश पूरी करने की कोशिश करोगे, है ना? तो जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसी जादुई पेंसिल आ जाती तो आप क्या करते? आप उससे अपनी विश को पूरा करने की कोशिश करते, आप कुछ ऐसा बनाते जो रियलिटी में आपके पास वो चीज आ जाए। ठीक है। तो यस ये जिस एज में ये बच्चे होते हैं एक्चुअल में, इस एज में इनको ये पता नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है। द सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, द सेंस ऑफ चार्म, एवरीथिंग दे आर हैविंग लाइक अ नॉर्मल चिल्ड्रन। बट इनको पता नहीं होता कि ये कर क्या रहे हैं, बस जिंदा रहने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं जिससे उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उनको लगता है कि हम बस ये काम जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। बट उनकी विशेष भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे एक नॉर्मल किसी बच्चे की होती है, कि हमें भी ऐसे ये चीजें चाहिए, ऐसे टॉयज चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, और जो भी एक नॉर्मल बच्चे की जो विश होती है। ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। ये जो इसने जो लाइन यहाँ पे जो कही है कि sometime I find a gold in the garbage, this line is having a very depth meaning. This line is not a very simple and very small meaning. It is having a very in depth meaning. ठीक है। क्लियर? चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है, मुझे कुछ आपको वेबसाइट्स भी खोल के दिखानी है। अब इसमें फिर लास्ट के इस पोर्शन में साहब जो है वो किसी और के अंडर में काम करने लगता है। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन बुक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो मैंने इसमें से पिकअप कर ली है। ठीक है। सो साहेब उसमें एंड में किसी और के अंडर में काम करने लगता है, और जो इनोसेंसी पहले उसकी होती है वो अब डिसअपियर हो जाती है। ये इसमें कहीं पे लिख के, इसमें आपके इस चैप्टर में कहीं पे ये लाइन आई है कि when he has acquired by somebody else and now somebody else is acting as a master of Sahib, the innocency of the Sahib got disappeared. ऐसा क्यों है? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? आप पहले फ्री थे काम करने के लिए। ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब तक? हेलो। यस सर। ठीक है, कुछ लोग अभी डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं, मुझे इसमें दिख रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। ओनली नो दिव्यांश। सर, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई है सर। केमिस्ट्री की क्लास इस टाइम पे? यस सर, और वो लाइव क्लास ले रहे हैं सर, शायद नहीं इस वजह से। तो मैंने तो आप लोगों से इन्फॉर्म किया था कि आज हम क्लास लेंगे। यस सर। देन चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे आप लोगों को बतानी थी, बट जो लोग मिस करेंगे तो वो इस बात में इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें फिर जो सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में इसमें बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो फिरोजाबाद है उसके बारे में कुछ बताया गया है ना, जहाँ पे बैंगल्स बनते यस हैं। तो वहां पे एक मुकेश की कहानी है इसमें, और वो मुकेश कहता है कि आ, वो लोग बहुत ही एक छोटे से डिम घर में रहते थे, बहुत ही उसकी लाइट बहुत ही डिम सी थी, है ना। उसके बाद इसमें
इस स्टोरी में आपको ये पता चलता है कि मुकेश एक्चुअल में एक ड्राइवर बनना चाहता था, है ना। और फाइनली क्या होता है कि उनके यहाँ भी एक कंसेप्शन बना हुआ था कि जो काम इनके फादर फोर फादर करते हुए आ रहे थे वही काम इनको भी करना है, बिकॉज ये इनकी एंसेस्ट्रल लिगेसी है, ऐसा ये फील करते थे। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. श्रेया सेकंड इज हेयर, या ये भी क्लास करने गई हैं? सर आई एम प्रेजेंट। आपने केमिस्ट्री की क्लास नहीं ज्वाइन की? नहीं सर। क्यों, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? ओके चलिए ठीक है, आप जैसा आपको बेटर लगे आप वैसा कीजिए। ओके सो इस सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसके बाद फाइनली ये स्टोरी वहां पे एंड हो जाती है। और मैंने आपको कल इसका कंपैरिजन बताया था कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। ठीक है, अच्छा अब इसका सेकंड पार्ट जो है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, ठीक है, कुछ फिगर्स मैंने नोट किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको यूनिसेफ की वेबसाइट पे लेके चलूंगा। ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 51,000 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो बिलो 18 ईयर्स एज के हैं, एंड दे आर इन्यूमरेटेड एज ए स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब उनको स्ट्रीट चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा गया है कि मतलब उनका कोई घर बार नहीं है और वो स्ट्रीट पे रहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 51,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसमें से 36% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो स्ट्रीट फैमिलीज के ही हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी फैमिली स्ट्रीट पे ही रहती है, 36%। ठीक है, अभी मैं डेटा भी आपको ही दिखाऊंगा। 28% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 36% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कास्टिज्म एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ इंडिया में। अभी कास्टिज्म पे तो हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो अगेन बहुत ज़्यादा एक लेंदी टॉपिक है। देखिए अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है, मैं आपको दोबारा एक और लिंक भेजूंगा। ठीक है, आप फिर से कनेक्ट हो जाना इसमें, मुझे आपको कुछ साइट्स दिखानी है। क्लियर? संदीप सर भी क्लास लेने बोल रहा हूँ, वो लिंक सेंड किए लाइव क्लास के लिए। संदीप सर को बोलिएगा थोड़ी देर के बाद क्लास ले लें, उनको मैसेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा आपका आज सेशन लूंगा। क्लियर? चलिए मैं आपको यूनिसेफ की एक साइट दिखा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर इस सेशन को हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज कर देंगे। ये साइट दिख रही है आपको स्क्रीन पे? ये साइट नजर आ रही है आप सबको? हेलो, यस सर। ये यूनिसेफ की साइट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस यस सर। फंड। ठीक है, आप इस साइट को एक्सप्लोर कीजिएगा। इस साइट पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे इस तरह के जो बच्चे हैं इसके रिगार्डिंग ये एजेंसी क्या काम कर रही है, इंडिया में क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के एरिया पे काम करती है। क्लियर? तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जिसमें मुझे आपको बताना था। इसका मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। क्लियर? आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का। अब टाइम तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल JUVENILE, स्पेलिंग सुनाई दे रही है? JUVENILE, समझ आया? JUVENILE, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये वो बच्चे होते हैं जिनकी एज 10 साल से 20 साल के अंडर में होती है, और वो क्योंकि उनकी कोई फैमिली, उनका कोई घर, कोई इस तरह का उनका बैकग्राउंड नहीं होता है जिसमें उनकी कोई केयर कर सके। इस वजह से वो गलत जो है वो गलत तरीके की हैबिट्स में वो पड़ जाते हैं।
ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको कि वो ड्रग्स लेना और दूसरे बुरी हैबिट्स की उनको जो है आदत पड़ जाती है, उसमें वो इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको सुधारने के लिए, इस तरह के बच्चों को सुधारने के लिए जो है वो कुछ सेंटर्स बने हुए, जुवेनाइल सेंटर्स। ठीक है, जो इन बच्चों को अपने पास रखते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इनका करते हैं। ठीक है, फिर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा सा नेट पे और सर्च करिएगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का और मतलब क्या होता है। क्लियर? तो ये फाइनल इसका ओवरऑल कंक्लूजन था। मुझे लगता है कि अब इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ इन डेप्थ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दो चीज़ें मैंने आज आपको जो न्यू बताई हैं, एक यूनिसेफ और एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है, इन दोनों को आप अपने लेवल पे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इनकी साइट पे जाइएगा यूनिसेफ की, और ये यूनिसेफ की वेबसाइट आपको जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देगी। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे यूनिसेफ टाइप करेंगे तो यूनिसेफ की ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और इसमें आपको जितने भी यहाँ पे आइकन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सर्वाइवल, एजुकेशन, सोशल पॉलिसी, ये सब इसमें क्या काम कर रही हैं, इन एरियाज में कैसे काम हो रहा है, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं अपने लेवल पे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. श्रेया सेकंड, श्रेया फोर्थ। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो चीजें न्यू थी, आप लोग इसको एक्सप्लोर करिएगा अपने लेवल पे, और फिर फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, और अब नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हमें किस स्ट्रेटेजी से क्या काम करना है वो हम अपने आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो शैल आई एंड द मीटिंग? मीटिंग एंड कर दें, टाइम भी खत्म हो गया अब हमारा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.